गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर का एससीसी का जो नॉवल का हमारा काम बचा है, वील ट्राई टू फिनिश इट। तो नॉवल का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। इफ़ यू नीड देन यू हैव टू टॉक टू मी एंड यू कैन गेट इट फोटोस्टेटेड। आप मुझसे बात करके आप मेरी बुक ले जा सकते हो और फोटोस्टेट आप करवा सकते हो। सो व्हाट डिड वी डू, हमने कहाँ तक ये नॉवल किया था? द डार्क रूम वी वर डूइंग यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइटल, हमने ये भी किया था। एंड वी डिस्कस दैट रमानी इज देयर, हिज वाइफ इज देयर and he has three children he has and servants are there. Attitude of the servants and as well as of Ramani is of typical patriarchal thought है. They just won't treat female as a thing only, कि उसको कोई respect नहीं है, उसका कोई place नहीं है, उसको they don't want to treat her equally. So what happens, like Ramani treats her his children as his property, और उनको बच्चों के साथ उसका behavior it is not so good. He wants her son to be like him, उसकी तरह वो चाहता है. Now what did he do? He organized an interview where a female named Shanta Bai was recruited. So वहाँ पे हमें attitude of male world towards female भी दिखता है कि when a female starts earning, और initially जब उसने जॉब करना शुरू किया था फीमेल का, तो फीमेल ने जो जॉब शुरू किया था, what was the attitude of the society, what was her own attitude, और किस टाइप के जो लोग थे वो स्ट्रगल करके फीमेल्स आगे आ रही थी. सो वी कम टू नो दैट शांताबाई इज अ वुमन हु इज डिवोर्सी एंड लिविंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड हर ब्रदर्स एंड नन इज देयर फॉर हर सपोर्ट. सो इनिशियली शी टॉक्स टू Ramani as a brother. She becomes very close to him. She doesn't have any place to stay for. So what does Ramani do? अपने घर से वो वाइफ का फेवरेट बेंच ले आता है, तो वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाती है. वेयर एक्स्ट्रा समथिंग एक्स्ट्रा इज बीइंग गिवन टू समवन, कुछ एक्स्ट्रा उसको दिया जा रहा है, अपनी वाइफ को वो इग्नोर कर रहा है. नो, हिज वाइफ इज़ नॉट एजुकेटेड, शी इज़ नॉट क्वालिफाइड, शी टेक्स हर फॉर मूवी. तो वहाँ पे भी शी रिमेन्स वरीड अबाउट हर किड्स बिकॉज शी इज़ अ मदर ऑल्सो. और Ramani डजंट लाइक ऑल दिस. Ramani जो है वो ही वॉन्ट्स टू सी हिज वाइफ फिजिकली ब्यूटीफुल, उसको वो देखना चाहता है. बट शी हैज़ गॉन थ्रू 2 abortions and 3 kids are there. So whatsoever her situation is, everyone knows. So at home he has servants का जो attitude है वो भी किस तरह का है अपनी wives के लिए. we come to know that after going through the story. So what happens now? Ramani, now what is happening? Ramani is very much worried because Shantabai has been working in his office for more than a month. और शांताबाई को जो एक टारगेट दिया गया था 1 महीने में, she fails to achieve that. तो अब उसको 2 महीने के दौरान जो काम करना था, she couldn't do that. And what happened? शाम को जो Ramani उसके पास आता है, तो he sits with her and he talks to her that for 1 month you have been here and you have failed to achieve that very target which is given to you by the insurance company. What is she? She is a woman who is making excuses कि now I'll be kicked out of this company. Where would I go? मैं कैसे जाऊँगा, लेकिन कहाँ जाऊँगी, और मैं किस तरह से अपनी लाइफ को जो है कंटिन्यू करूँगी. So she bowed her head and now he tries to pacify her, he tries to make her comfortable. So he says that if I am giving you one suggestion, better you meet males and inspire them or motivate them to purchase insurance for their wives and talk to them. तो वहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि फीमेल्स वर कन्फाइंड टू द 4 walls ऑफ द हाउस, वो हाउस वाइफ्स थी, और मेल्स को जो मेल्स को अपने जो है वो मेल से इंटरेक्शन करनी है, तो वो एक फीमेल को बोल रहा है कि गो एंड टॉक टू द मेल्स. तो वो क्या होगा, उससे जो है मेल्स मोटिवेट होकर अपने वाइफ्स के लिए इंश्योरेंस ले लेंगे क्योंकि एक फीमेल उनसे बात करेगी. सो Kante Iyengar was also there. So one of the other fellow was also there. They were having an evil eye upon Shantabai and they were not liking the attitude of Shantabai and as well as of Ramani. So in the evening, I've told you in previous lectures also, जो Ramani है, he was in a habit of going to the club. While he was coming back from the club, so what did he do? He changed his routine. Now he didn't play cards and he preferred to be with शांताबाई एंड डिसाइडेड टू बी बैक होम एट 10 o'clock. 10 बजे तक वो शांताबाई के साथ रहता था. लेकिन आज क्या था, शांताबाई वॉज वेरी मच अनॉयड एंड क्योंकि उसको ये कहा गया था तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है. सो व्हेन Ramani went to her, what did she say? That now I'll get rid of me. आप मुझसे तो छूट जाओगे. Ramani didn't want to get rid of hers. उससे वो छूटना नहीं चाहता था. जैसे ही वो अंदर आया तो she talked to him in a very stylish way. और उसने क्या किया कि I know my fate, I won't turn my face. अब जो भी है I'll face it. और मैं जो है उसको फेस करने के बाद जो है जो नतीजा निकलेगा देखेंगे. शांताबाई said that I don't want you to favor me.
कि मुझे फेवर मत करना, हेड ऑफिस में कोई बात मत करना, जो चल रहा है उसको चलने दो, बिकॉज शी न्यू कि रमानी जो है उसकी वो हेल्प करने वाला है. एंड रमानी टुक होल्ड ऑफ हर्स. नाउ व्हाई डज ही टुक होल्ड ऑफ हर्स, उसको क्यों उसने पकड़ा? बिकॉज शी वॉन्टेड द सेम, शी वॉन्टेड टू बी विद हिम. तो वो जितना चाहती थी रमानी उसके पास आता गया. एंड शी जस्ट टोल्ड हिम डोंट मेक योर सेल्फ अ लाफिंग स्टॉक फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हंसी का पात्र मत बनो. एंड डोंट बी इन फेवर, डोंट डू फेवर, और मुझे जो है वो फेवर मत करो. एंड शी वॉज अबाउट टू क्राई. उसका स्ट्रैटेजिकली उसने एक प्लान किया था कि क्या करना है, रोना है और एक ड्रामा क्रिएट करना है और उसके बाद जो है मेल की फेवर को गेन करना है. सो ना रमानी फेल्ट, अब उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ही इज़ इन कॉन्टेक्ट विद टू women. One is illiterate, who's his wife. She is not, she doesn't find time to dress up herself properly. She doesn't have time to look different from others. She is a very simple housewife, जो एक housewife, typical housewife होती है, जो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपनी family का ध्यान रखती है. And other female is in his circle who knows how to dress up well. She is well qualified. She knows how to handle things in a different way. दोनों की handling अलग अलग तरह से, दोनों अपनी responsibilities को carry कर रही हैं. One is a working woman, other one is a housewife. लेकिन रमानी गलत यहाँ पे क्यों है? Because he is in a relation, he is married, so he should be loyal to his wife. लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हाँ वो अपनी वाइफ को डिच कर रहा है. सो Shantabai started crying and ultimately Ramani tried to console her. She didn't want to leave alone that day, and so they preferred to go out. They wanted to go out for outing, और उसके बाद they wanted to enjoy a movie. तो she didn't want to enjoy the movie. वो अकेले घूमना चाह रही थी उसके साथ. So he took her to the theater where they didn't feel well. 9 बजे 9:30 तक he was not with, he didn't want to be with her. When it was dark he took her. Why did he not want to be with her? He didn't want to be pointed out by people. वो लोगों के द्वारा देखा नहीं जाना चाहता था. So what did he do? उसने क्या किया, जब थोड़ा अंधेरा हो गया, he took her. When they reached theater she didn't feel it interesting. She didn't find it interesting. उसको कुछ मज़ा नहीं आया मूवी देखने में. So ultimately what did they do? At 10 o'clock they prefer to leave the theater. And Ramani, what did he do? He moved the car towards the river. They sat there, they enjoyed, and ultimately what did she say? Ki I have gone mad today, and are you feeling comfortable with me? He said that yes, I am comfortable. So ultimately they moved towards the river. They sat there and spent time. After that they reached the place where Shantabai lived. उनकी जो ऑफिस थी वहाँ पे रेस कोर्स रोड पे वहाँ पहुँचा. She called her in and wanted him to be with her till morning. अब क्या हुआ, Ramani was very happy. He got a chance to be with her. They spent night together and ultimately he reached home at 5 in the morning. जब वो सुबह आया तो क्या हुआ कि सावित्री was just waiting for the milkman. क्या वो वेट कर रही थी. एंड Savitri just tried to hide from the milkman when he asked that where your husband is coming back now. Milkman ने पूछा, Savitri ने क्या कहा, he had been out in the morning. वो सुबह गए थे और अब वो वापस आ रहे हैं. 8 o'clock she offered him a glass of coffee. He came out and Savitri was very upset because she was coming to know about the whereabouts of her husband. उसको पता था, लेकिन being a traditional Indian woman she couldn't object. वो ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहती थी, वो रफ वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती थी, वो उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी, दुखी नहीं करना चाहती थी. एंड नो what was happening, she started hating herself that वो अपने आप को एनालाइज कर रही है कि मेरे पास वो क्वालिटीज़ नहीं है जो पढ़ी लिखी लेडी में होनी चाहिए. मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ और मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं, मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है. तो पहले तो शी वॉज बर्डन, शी वॉन्टेड टू जस्ट रिलीज हर बर्डन, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि शी वॉन्ट पॉइंट हिम आउट. So she put the glass on the table and he was combing her hair. So she said that I want to go out. Then he didn't say anything. She said that I have put the glass on the table. She moved out and what happened? She started shouting at the servant. उसकी जो servant थी उसके ऊपर वो चिल्लाना उसने शुरू कर दिया. Because she was very much upset. उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है. Because she didn't want to point out her husband. उसकी जो ट्रेनिंग थी वो पता भी कैसी थी, वो थी ट्रेडिशनल इंडियन वुमन की, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आप हस्बैंड इज़ गॉड
वो मालिक है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं करना है, उसकी किसी बात को रिएक्ट नहीं करना है, जो वो बोल रहे हैं वो फाइनल वर्ड है, हर बात माननी है, मारे पीटे जो मर्जी है वो फाइनल है। तो वो उस टाइप के थॉट्स के साथ वो ग्रो हुई थी लड़की। सो द सर्वेंट हैड फिनिश्ड द वर्क एंड नाउ शी वांटेड टू बी बैक होम। शी इज़ सो अपसेट, सावित्री इज़ सो अपसेट, उसके सामने जो भी आ रहा है उसको डांट पड़ रही है, एंड सर्वेंट को डांट पड़ी, उसके कुक को उससे डांट पड़ी, एंड शी सेड दैट व्हेन शी वाज वेरी टायर्ड शी सैट ऑन वो एक मैट के ऊपर बैठ गई। देन सुमति वॉज देयर, शी आस्क्ड हिम, सुमति इज़ हर डॉटर, उसने पूछा कि माम वाई आर यू सिटिंग ऑन फ्लोर, कहती मेरा एक बेंच था ना वो तुम्हारे फादर जो है वो ले गए हैं तो आई हैव टू बी हेयर। वो अंदर जितना गुस्सा था ना वो सामने आ रहा है। सुमति हेजिटेटिंगली सेड दैट व्हाई डोंट यू टॉक टू आवर फादर, फादर से बात क्यों नहीं करते हो। तो शी सेड दैट एवरीवन फील्स स्कैर्ड ऑफ हिम, उनके साथ कोई बात करना ही नहीं चाहता है। व्हेन ही स्टार्टेड टेकिंग food before leaving for his office, तो he just he didn't react, he didn't say even a single word। सावित्री ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि if she'll say something it's going to be disastrous। तो वो जो है वो अपने अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ों को लेके जो है वो confused है लेडी। she wants to talk to him, बट उसके जो संस्कार हैं, जिस तरह का उसको ब्रॉटअप दिया गया है, वो चीज़ें उसको मुँह खोलने की परमिशन नहीं देती है। सो उसकी एक फ्रेंड थी, मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था, वन फ्रेंड इज़ गंगू, अदर वन इज़ जनमा। जो गंगू है शी टेल्स हर द रियलिटी, शी हैज़ सीन हर हस्बैंड विद शांताबाई। तो वो शांताबाई की रियलिटी एकदम से तो नहीं उसको बताती है, लेकिन हल्का हल्का करके वो उसको बता रही है। नाउ शी ट्राइज टू टॉक टू हर हस्बैंड, शी सेज दैट बाबू हैज़ स्कोर्ड 60% मार्क्स इन मैथ्स, लेकिन जो रमानी का एटीट्यूड है इट इज़ नॉट मेड क्लियर, कुछ समझ ही नहीं आती है। सावित्री ट्राइज टू स्माइल, लेकिन वो अंदर से जो है वो स्माइल नहीं निकल रही, आ रही है उसके चेहरे पे, वो ऐसे जैसे प्रिटेंशियस होता ना, फेक स्माइल लगाना उस तरह से। व्हेन ही गॉट रेडी फॉर हिज ऑफिस देन शी मेट हर अगेन। अब वो बार बार उसके सामने आने की कोशिश कर रही है। शी वांट्स हिम टू टॉक टू हर, वो चाहती है कि वो उससे बात करे, लेकिन ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम दैट डे। उस दिन वो अच्छा लग रहा था बिकॉज उसने भी अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव किया है। एंड शी वॉज थिंकिंग दैट गंगू एंड अदर वीमेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट हिम, शी वॉन्टेड टू टॉक टू हिम। शी आस्क्ड वन थिंग, वेदर यू विल बी लेट टू नाइट ऑल्सो, आज भी क्या आप लेट हो जाओगे। ही डिडंट रिप्लाई एंड वॉट डिड ही से, एंड अगेन ही इज़ ट्राइंग टू अगेन शी इज़ ट्राइंग टू क्लियर द थिंग्स। वो बोल रही है कि आई डोंट मीन दैट, कहते आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई योर फुलिश क्वेश्चंस। हस्बैंड को वो क्वेश्चंस जो है वो फुलिश लग रहे हैं, तो व्हाट इज ही सेइंग दैट आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू योर फुलिश क्वेश्चंस। सो ही जस्ट मूव्ड अहेड एंड एट लास्ट ही गॉट annoyed और सडनली व्हाट हैपेंड, मिड डे के आसपास जो है गंगू रीच्ड देयर, सावित्री वॉज लाइंग ऑन मैट। अब गंगू जो है वो अननोइंगली वो उन्हीं थॉट्स को उसमें इनकलकेट कर रही है, ग्रो करवा रही है, डेवलप कर रही है, जिन पे वो सावित्री जो है परेशान है। देखो दो चीज़ें हैं, वन थिंग इज़ हर फ्रेंड वांट्स टू शेयर रियलिटी विद हर, अदर थिंग इज़ दैट शी वांट्स हर टू टॉक टू हर हस्बैंड। तो सावित्री सेड दैट नथिंग हैपेंड, आई एम कंफर्टेबल, मैं ठीक हूँ। सो गंगू सेड दैट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू बिकॉज योर बेंच इज़ नॉट देयर एंड आई जस्ट केम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। और गंगू ने क्या बोला फिर उसके बाद कि आई हैव टोल्ड माई हस्बैंड दैट व्हेन यू एवर यू विल बी बैक फ्रॉम स्कूल, उसका हस्बैंड स्कूल में है, आई वोंट प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ फूड फॉर यू, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, यू गेट इट पैक्ड फ्रॉम द मार्केट, पैक्ड ही ले आना। And then Savitri asked, what about the others? He said that if he doesn't bring, then I'll send him out. Then Savitri asked her, she wanted to distract her, वो उससे वो बात करना नहीं चाहती है। Then Gangu said that, did you watch that very movie which is there in the Palace Cinema? Palace Cinema is the place where Ramani had been there with Shantabai. So she said that it has some songs which are too good. एनी डे आई शो यू, क्योंकि गंगू इज़ फॉन्ड ऑफ एक्टिंग, उसको एक्टिंग बड़ी पसंद है। बस वेट फॉर सम टाइम, आई नो योर हस्बैंड हैड बीन टू वॉच दैट वेरी मूवी। शी वॉज शॉक्ड। नाउ गंगू ने क्लियर कट उसको बताया कि उसका हस्बैंड किसी लेडी के साथ था। नाउ शी इज़ नॉट रेडी टू बिलीव दैट, वो उसको विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब गंगू ने कहा कि मुझसे 2-3 चेयर्स आगे वो बैठा हुआ था एंड यू थिंक कि थ्रू आउट द नाइट ही वॉज वर्किंग हार्ड इन हिज ऑफिस, कहते उसने कुछ भी नहीं किया है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ।
तो सावित्री जो है शी इज़ ट्राइंग टू फॉइल हर हस्बैंड अगेन, उसकी एजुकेशन इस तरह की है, उसकी जो ब्रॉटअप है वही इस तरह का, शी डजंट वांट टू से इवन ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर हस्बैंड, शी डजंट वांट टू लिसन टू इवन ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर हस्बैंड। सो बार बार वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपनी फ्रेंड को, फ्रेंड बार बार वहीं पहुंच रही है। नाउ सावित्री इज़ रियली वेरी मच डिस्टर्ब्ड दैट पीपल आर ट्राइंग टू स्पॉइल देयर रिलेशन। शायद वो रमानी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। नाउ सावित्री वॉज सिटिंग देयर एंड शी डिडंट फील कंफर्टेबल। नाउ गंगू वॉज अ वुमन हु वॉज वेरी एक्टिव ऑल्सो एंड शी वॉन्टेड टू टॉक टू सावित्री अब दोबारा से। Now Savitri is curious also. She wanted to know about the girl who was with Ramani. She said that that very girl, कहते उसके बारे में तो just forget. कहते now Savitri wants to know curiously. तो what she say? How does she express her views about herself? सावित्री ने अपने बारे में क्या कहा? I am an old woman. Fine. And I look like an old woman who is not beautiful. What can I do? I had gone through 2 abortions, three children are there. I do manage entire household chores and I don't have time for myself. तो he might be looking for some beautiful woman. अब वो थोड़ा सा उसके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही है, वो अपने बारे में क्या सोचती है गुस्से में वो निकल रहा है। That I am a middle-aged woman, I am orthodox also, I am very simple. What can I do? Definitely the girl with whom my husband was there, she would have been very beautiful, and he is not coming home timely for weeks, and yesterday he didn't turn up, he didn't come home in the morning, he was back home, he didn't talk to me, and he doesn't want to talk to children also. अब उसके अंदर का जो गुबार है, उसके अंदर जो घुटन है, it is coming out. In the morning he came back and and just tell me. अब वो गंगू से पूछ रही है whether they were sitting very closely. तो गंगू ने कहा, क्या कहा? Yes. Then she told her that very lady is very beautiful, लेकिन देखने में she is fair complexion, लेकिन you have your own qualities. So this is all for today. We'll continue with the same later on. Good day.